So I was talking about the accident and emergency services. So what is the aim of the emergency services? Are you able to hear? सबको सुनाई दे Yes, रहा sir. है? स्क्रीन Yes, दिखलाई sir. दे रहा Yes, sir. है? Screen is visible? Yes, sir. Okay. So what is the aim Yes, of sir. emergency medical service is to transport the right patient to the right hospital at the right time so the proper treatment may be administered. This I have done last time in our last lecture. So I think everybody is clear in this regard what is the aim of emergency medical services, and thereby prevent death, disability and distress of the injured patient who have been suddenly fallen ill. तो ये बात समझ में आ गई है सबको? Everybody is clear about the aim of emergency medical service? Yes, sir. Okay. So these are the components and sequence of the emergency medical service. I'm just repeating it. I've already told you these components last time. First, there should be efficient communication system. Efficient communication system is required both from the outside of the hospital and even in the hospital also. Communication system is very important at both the points. From the outside of the hospital, how the patient is communicated either from the road by after accident or from home after illness. So there must be communication system outside the hospital, and inside of the hospital there must be good communication between the departments, different specialists. They should communicate with each other when patient requires services of more than one department. So communication system has got importance both outside the hospital as well as inside the hospital. Then second important point is pre-hospital care. Pre-hospital care is the care which is done during accident on the road or which is done during illness in the home. So that is not in the hospital, but that is outside the hospital in the form of first aid. फर्स्ट एड करी जाती है. और रिससिटेशन, रिससिटेशन माने सपोज किसी की ब्रीदिंग बंद हो गई, हार्ट बंद हो गया, तो आप उसको कैसे पुनर्जीवित करते हो, रिससिटेट करते हो. रिससिटेशन स्टार्टिंग द फ्रॉम द प्लेस ऑफ इमरजेंसी, जहां पर इमरजेंसी हो. पेशेंट का अगर हार्ट स्टॉप हो गया, पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे ब्रीदिंग कराओगे, कैसे हार्ट को स्टार्ट करोगे, दैट इज नोन एज रिससिटेशन. तो ये सब कहां पर होता है? प्री हॉस्पिटल केयर, जहां पर सडन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. एंड देन थर्ड important point is after resuscitation, after providing resuscitation and first aid, patient is carried, transported to the hospital speedily without any delay. That should be transported to the hospital. And then in the hospital care, hospital treatment, then hospital treatment must be done with the fully equipped hospital center. Okay, is it clear now? Hello, is Yes, it Yes, sir. sir. clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So pre-hospital care, I have already told you, pre-hospital care means care and services provided to the individual at the site. साइट में जहां पर रोड पे एक्सीडेंट हुआ या जहां पर घर में कोई बीमार हुआ, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल, पहले साइट पर, और जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एम्बुलेंस में, आप देखते हैं ना एम्बुलेंस में भी जिसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें भी वेंटिलेटर लगा है, उसमें भी अदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी उसकी हेल्प करते रहते हैं. तो केयर ड्यूरिंग द साइट एंड केयर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? प्री हॉस्पिटल केयर. तो प्री हॉस्पिटल केयर से मेडिकल एड देने से होता क्या है? एक तो पेशेंट सेफ हो जाता है,
और कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, और जहां पर फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन मिलती है और कॉम्पिटेंट ट्रीटमेंट मिलता है। तो प्री हॉस्पिटल केयर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। नाउ प्री हॉस्पिटल केयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए? प्री हॉस्पिटल केयर में ट्रांसपोर्ट की व्हीकल होनी चाहिए, और एम्बुलेंस इक्विप्ड एट लीस्ट फॉर BLS। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। एम्बुलेंस इक्विप्ड एट लीस्ट फॉर BLS। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये होते हैं जिसमें आप पेशेंट को कम से कम, कुछ नहीं है तो आप उसका लिए स्ट्रेचर हो और ऑक्सीजन सिलेंडर हो, सक्शन एपरेटस हो, और उसमें ड्रेसिंग का सामान हो। ये क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऑक्सीजन देना, और जो पर्सन ले जा रहा है उसको रिससिटेशन करना, कैसे CPR करना है, पेशेंट को कैसे ब्रीदिंग देनी है, ये सब उसको आना चाहिए। और सक्शन, अगर मान लीजिए कोई चीज फ्लूइड निकल गया है, जो एक्सेस गले में ऑक्सीजन जाने में, एयर जाने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको कैसे सक करेंगे? वो सक्शन एपरेटस हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, और पर्सन जो ले जा रहा है एम्बुलेंस से उसको CPR करना आना चाहिए। ये सब क्या कहलाता है? BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और ये सब ये किसमें अवेलेबल होता है? एम्बुलेंस में भी अवेलेबल होता है, फायर इंजन्स में भी होता है, पुलिस की कार में भी होता है, टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल में भी होता है, और हेलीकॉप्टर्स में। नहीं, इतनी तरह की व्हीकल हो सकती हैं और उनमें ये चीजें होनी चाहिए। व्हीकल एम्बुलेंस हो सकती है, फायर इंजन हो सकते हैं, पुलिस कार हो सकती है, एनी टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल हो सकती है, एंड इवन जहां एयरलिफ्ट करनी होती है पेशेंट को, वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। देन मेडिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट होने चाहिए। मेडिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए। कम से कम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, और सक्शन एपरेटस होना चाहिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए व्हीकल में। देन ट्रेन्ड पर्सनल होना चाहिए। ये सब CPR करने का पर्सन ट्रेन होना चाहिए। जो ड्राइविंग करता है ड्राइवर, या जो फर्स्ट एड देने वाला CPR का मतलब होता है, फुल फॉर्म यू कैन राइट डाउन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो CARDIO, कार्डियो माने हार्ट। अगर हार्ट बंद हो गया, हार्ट नहीं चल रहा है, तो कैसे आप देखते हो सीने को कंप्रेस करके हार्ट चलाते हैं। उसका एक मेथड होता है, जब बात करेंगे हम CPR की डिटेल में तब बताएंगे कि आप हार्ट में यानी चेस्ट में कंप्रेशन करते हो, दैट इज नोन एज C। और P माने पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी। पल्मोनरी माने आप जब मुंह और नाक से सांस देते हो, मुंह और नाक से सांस आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर आपके ऑक्सीजन सिलेंडर है तो मास्क लगा के आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, दैट इज पल्मोनरी। रिससिटेशन माने पुनर्जीवन, RES रिसस RESCUS CITATION रिससिटेशन। CPR माने होता है, CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो जो एम्बुलेंस है जिससे पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको पर्सन ट्रेन होना चाहिए किस चीज में? CPR में। हैव यू रिटन द CPR? CPR समझ में आया सबको? यस सर। हल क्या फुल फॉर्म है CPR का? सर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल सबके पास है, यू हैव गॉट द मोबाइल इन योर हैंड, दैट इज द कम्युनिकेशन। तो वायरलेस की अब जरूरत नहीं रह गई है। जो वायरलेस सिस्टम हुआ करता था पहले, तो वो अब वायरलेस सबके पास हाथ में ही है, मोबाइल। तो मोबाइल से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो व्हीकल के अंदर, जो भी व्हीकल हो, चाहे वो एम्बुलेंस कार हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे वो
कुछ भी हो तो उससे आना चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स बाय विच कम्युनिटी एक्सेस टू द सिस्टम, यानी कम्युनिटी से सिस्टम तक ले जाने के लिए कम्युनिकेशन के मीन्स। पर्सनल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड द हॉस्पिटल, पर्सनल कम्युनिकेशन कर लीजिए और हॉस्पिटल से कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, तो कॉमन डिनोमिनेटर्स ऑफ सक्सेसफुल इमरजेंसी केयर, सक्सेसफुल इमरजेंसी केयर के लिए क्या क्या कॉमन चीजें होनी चाहिए? तो नंबर 1, एडिक्वेट फिजिकल फैसिलिटी, इक्विप्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड ड्रेसिंग। वहां पर क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट, एडिक्वेट माने पर्याप्त, फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे इमरजेंसी जहां पर दे सर्विसेज दे रहे हैं वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो आप पेशेंट को कैसे दोगे? जैसे मास्क होना चाहिए, वेंटिलेटर होने चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट्स होंगे तभी आप उसको ले पाएंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स होनी चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए जो आप इंजेक्शन वगैरह दे सको लाइफ सेव करने के लिए। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ड्रेसिंग्स का सामान सारा होना चाहिए। देन इमीडिएट प्रोफेशनल अटेंशन, और जैसे ही पेशेंट पहुंचे उसका प्रोफेशन के यानी जो प्रोफेशन वाले पैरामेडिकल मेडिकल पर्सन्स हैं वो तुरंत उसको अटेंड करें। देन कंटिन्यूड एंड कांस्टेंट मेडिकल सपोर्ट, और ऐसा पेशेंट जिसकी इमरजेंसी में कंडीशन गड़बड़ है उसको क्या चाहिए? कंटिन्यूड माने लगातार उसको कांस्टेंट मेडिकल सपोर्ट चाहिए, कांस्टेंट मेडिकल सपोर्ट। एंड देन स्पीडी डायग्नोसिस एंड रिससिटेशन, और जो वहां पर मेडिकल पर्सन है उसको डायग्नोसिस करना आना चाहिए, स्पीडी डायग्नोसिस। और अगर रिससिटेशन यानी उसको कंप्रेस करके उसको ब्रीदिंग करा करके रिससिटेशन करना है तो वो भी आना चाहिए। सो एज टू मेक इट पॉसिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ए पेशेंट into an existing system of patient care services in the institution। तो इंस्टीट्यूशन में ये सब चीजें होनी चाहिए। Is it clear or I should repeat it again? No, sir, it's clear, sir. Okay. So functions depend on the functions of an accident and in emergency department depends on the number 1 responsibility assigned, जिसमें जिसको जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहां पर एम्बुलेंस लेकर के आया, एम्बुलेंस में पेशेंट लेके आया, उसको क्या असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो वहां पे पैरामेडिकल पर्सन है इमरजेंसी में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है फंक्शन। नंबर टू साइज पे, बहुत से इमरजेंसीज आप देखते हैं हॉस्पिटल में मगर वहां पर उनकी इमरजेंसी थोड़े काम के लिए जैसे केवल ड्रेसिंग के लिए है, मगर अगर उनको रिससिटेशन करना कर देंगे, वेंटिलेटर नहीं है उनके पास, तो वो पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये डिपेंड करता है हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, यू गो टू दैट बिग हॉस्पिटल जहां पर वेंटिलेटर्स हो। तो ये फंक्शन डिपेंड ऑन द साइज आल्सो, देन लोकेशन आल्सो, देन टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। जैसे इमरजेंसी में सारे ट्रॉमा की सर्विसेज ट्रॉमा सेंटर्स कहलाते हैं जहाँ पे केवल एक्सीडेंटल वाली दी जाती है, तो सर्विस वहाँ पर कौन सी अवेलेबल है? कोई ट्रॉमा वाली अवेलेबल। और किसी हॉस्पिटल में मैटर्निटी सर्विसेज, मैटर्निटी की सर्विसेज अवेलेबल है। तो टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल पर फंक्शन डिपेंड करेगा। एंड देन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, हॉस्पिटल की क्या पॉलिसी है, इंस्टीट्यूशन की क्या पॉलिसी है, इन सब पे फंक्शन डिपेंड करते हैं। देन फंक्शन treat and manage all unannounced patient brought to the hospital at any time of the day or night। तो पहली क्या हुआ, फंक्शन की जरूरी बात यह है कि कोई भी पेशेंट अनअनाउंस्ड पेशेंट माने उसका पहले से अनाउंसमेंट, इमरजेंसी में अनाउंसमेंट तो होता नहीं कि अभी इनको चोट लगने वाली है या ऐसे ऐसे होने वाला है, वो तो अनअनाउंस्ड है। और उस जो भी कंडीशन में पेशेंट आया है हॉस्पिटल में एनी टाइम डे और नाइट उसको टैकल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। डील विद द एक्सीडेंट एंड इंजरीज राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मीन घड़ी में किसी भी समय
वो नहीं होता कि नहीं करें। तो अभी आप लिखते हो हॉस्पिटल में, लिख कर देखते हैं 24/7 यानी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, उसमें AM PM सब जुड़ा हुआ है, तो राउंड द क्लॉक है और हर समय ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। कैरी आउट माइनर और मेजर सर्जिकल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल में माइनर सर्जिकल प्रोसीजर केवल हो सकते हो, मेजर नहीं हो सकते, देन यू विल रिफर पेशेंट टू द मेजर हॉस्पिटल जहां पर मेजर सर्जरी हो सकती है अगर जरूरत है। प्रिवेंट इन्फेक्शंस केसेस फ्रॉम द एंटरिंग द वार्ड, और जो इन्फेक्शस केस हो, इन्फेक्शन जिसमें हो गया हो, उसको आप वार्ड में नहीं ले जाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट जगह रखेंगे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आइसोलेशन करके रखेंगे, उसको वार्ड में नहीं भेजेंगे क्योंकि इन्फेक्शन फिर सब में फैल जाएगा। अभी आपने देखा कोविड का इन्फेक्शन, अगर हॉस्पिटल कोविड बना दिया गया तो उसमें नॉन कोविड पेशेंट नहीं भर्ती किए जाते, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट को भी कोविड हो जाएगा। तो इसलिए जो इन्फेक्शियस केसेस होंगे उनको वार्ड में नहीं ले जाते हैं। टीच एंड ट्रेन मेडिकल स्टूडेंट, और अगर वहां पर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको ये सिचुएशन दिखा करके आप टीच करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे जिससे वो फर्दर काम कर सकेंगे। एक्ट एज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सी बातें, नई नई बातें पता लगती हैं हर एक को, जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते जाते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। तो टू बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक सेंटर, तो हर सेंटर को डायग्नोसिस करना आना चाहिए और थेरेपी करनी आनी चाहिए। हैंडलिंग ऑफ मेडिको लीगल केसेस एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, और जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उनको उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। जैसे कोई भी बर्न केस होगा वो हमेशा मेडिको लीगल केस माना जाता है। कोई भी किसी को इंजरी करके लाया है, किसी ने नाइफ वो किया है, गन शॉट इंजरी हुई है, तो ऐसी इंजरी सब क्या होती है, मेडिको लीगल। मेडिको लीगल का मतलब उससे मेडिकल भी फैसिलिटी मिलेगी उस पेशेंट को, और उसको लीगल हियरिंग भी होगी कि ये आखिर किसी ने मारा है, क्या किया है, तो क्यों ऐसा हुआ है, तो मेडिको लीगल केस होता है। तो जब ऐसे मेडिको लीगल केस होते हैं तो पुलिस को इंफॉर्मेशन बहुत मस्ट होती है। तो लाइजन विद द पुलिस एंड अदर स्टैचुरी एजेंसी, इसलिए हॉस्पिटल को लाइजन करना चाहिए, उसको संबंध बनाना चाहिए पुलिस से और अदर स्टैचुरी एजेंसी, जो रेवेन्यू वाली एजेंसी, DM वगैरह के ऑफिस से ये कनेक्शन होता है। तुरंत इन्फॉर्म करते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंटल ऐसा केस आ गया जो मेडिको लीगल है तो ये इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए। Then factors to be borne in mind, location in relation to main road, जो जहां पर आपको क्या क्या फैक्टर्स हैं जब आप ये बना रहे हैं सर्विसेज, तो आपको दिमाग में क्या क्या सोच करके रखना है। पहली बात तो मेन रोड से क्या लोकेशन कैसी है, पास में कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री ड्रेनिंग एरिया, अगर पास में कोई इंडस्ट्री है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, वहां पे किस तरह की इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल में सर्विसेज आपको बनानी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, जैसे आपने अपने नंबर्स दे रखे हैं कि एनी इमरजेंसी इफ इट ऑकर्स तो आप तुरंत एम्बुलेंस को बुला लें, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी उस इंडस्ट्री से होनी चाहिए। पेशेंट लोड के हिसाब से आप वहाँ पर वर्कर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएंगे कि यूजुअली आप देखेंगे दिन भर में कितने पेशेंट यहाँ पर आ जाते हैं। रोड के बिल्कुल मेन रोड पे है, मेन रोड पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते रहते हैं, तो यूजुअली पेशेंट एक के बाद आते रहते हैं, तो ऐसे वहाँ लोड के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा सर्विसेज। आवर्स ऑफ मैक्सिमम पेशेंट लोड, किस समय सबसे ज़्यादा लोड होता है पेशेंट के आने का, उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। एंड देन मॉर्बिडिटी पैटर्न माने जो बीमारी का पैटर्न है, वहां पर आसपास के लोग किस चीज से ज्यादा बीमार होते रहते हैं, उसके हिसाब से आपको इमरजेंसी अपनी इक्विप करनी पड़ेगी। अदर फैसिलिटीज फॉर द सेम पॉपुलेशन, और वहां पे अदर फैसिलिटीज भी आप क्या दे सकते हो उस पॉपुलेशन के। देन आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द हॉस्पिटल, फिर जो ये हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी देने के लिए आपको आर्किटेक्चर जो डिजाइन बनाएगा उसके हिसाब से बनाना चाहिए।
किस तरह के आपको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए इमरजेंसी में। देयर मस्ट बी कार्डियक केयर एरियाज। कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम इमरजेंसी में, चेस्ट पेन वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कार्डियक केयर में क्या क्या सुविधाएं पेशेंट को दी जाती है, किस तरह का मेडिकेशन दिया जाता है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, वो फैसिलिटी आपकी इमरजेंसी में प्लान होनी चाहिए। देन ट्रामा एरियाज, ट्रामा के हिसाब से जो इंजरी किस हिसाब से लगती है उस हिसाब से वहां पर होना चाहिए। होल्डिंग एरियाज, होल्डिंग एरिया होनी चाहिए जहां पे पेशेंट को आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो। आपके पास सपोज आप तुरंत डायग्नोसिस नहीं बना पाए और आपको ये भी डर है कि ये पेशेंट इन्फेक्शस होगा, और तीसरा ये है कि अगर हम इसको जनरल वार्ड में भेज देंगे तो अभी इतनी केयर नहीं हो पाएगी, तो आपको वहां रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से वो कहलाता है होल्डिंग एरिया, वहां पे इमरजेंसी में होना चाहिए। स्पेशल केयर एरियाज भी होने चाहिए, जैसे स्पेशल केयर आजकल स्पेशल हर हॉस्पिटल में स्पेशल केयर की अंदर पेशेंट इमरजेंसी में इतना लोड है कि अगर बाहर पेशेंट 10-15 है तो आपने देखा है हॉस्पिटल के बाहर लोग टेंट लगा करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा दिए थे। तो क्या है, मान लीजिए जब तक आप इमरजेंसी में अंदर पहुंचेंगे तब तक ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उन्होंने 10-15 लोगों का जो बाहर है पेशेंट जिनको अभी अटेंड नहीं किया जा पा रहा है उनको भी ऑक्सीजन मिल जाए, तो स्पेशल केयर एरिया बना दिया वहां पर कि उनको ये सप्लाई दी जा सके। देन फॉलो अप एरिया, फॉलो अप एरिया मीन्स जहां पर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, उसकी रिससिटेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गई नॉर्मल, अब सब कुछ हार्ट नॉर्मल, मगर उसको अभी फॉलो अप करने की जरूरत है, सडन फिर ब्रीदिंग बंद हो सकती है, तो उसको फॉलो अप एरिया होना चाहिए। देन ट्राइएज एरिया, ट्राइएज एरिया, एवरीबडी कैन स्पेल दिस वर्ड ट्राइएज, स्पेल करिए एनीबडी, ट्राइएज, हेलो, Yes, sir. ट्राइएज बोलिए, कैसे बोलेंगे, व्हाट इज The ट्राइएज? tri-age areas. ट्राइएज एरिया, इसका मतलब ये होता है जैसे मास इमरजेंसी हो जाए, बहुत जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, दो बसें आपस में लड़ जाएं आमने सामने, तो ये बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं एक साथ, एक या दो नहीं होते, पता चला 50 लोग इंजर्ड हो गए। 50 लोगों में क्या हो सकता है, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, किसी का सांस नहीं ली जा पा रही है, किसी की डेथ हो गई, तो डिफरेंट टाइप के केसेस होंगे ना वहां पे, तो हमें इसमें छांटना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ती है उन केसेस को जिनको अभी हम सेव कर सकते हैं। सपोज किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे केस को हम पहले नहीं टेकअप करते हैं, हम टेकअप उसको करते हैं जिसकी सांस रुक रही है, गर्दन मुड़ी पड़ी है, तो हम पहले उसकी गर्दन सीधी करेंगे, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। किसी की ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम ब्लीडिंग को रोक दें वहीं पर, तो क्या होगा, उसको शॉक में नहीं जाएगा, अनकॉन्शियस नहीं होगा। तो हमें पहले केयर किसकी करनी है, उसके बाद किसकी केयर करनी है। वो किसी को माइनर इंजरी आई है, केवल खरोच लगी है, कहीं स्वेलिंग हो गई है, तो उसकी डेथ नहीं होने वाली है, तो उसको हम थर्ड कैटेगरी में रख के देखेंगे। तो हम ट्राइएज का मतलब होता है जहां पर मास इंजरीज हो जाती हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जहां पर बहुत सारी इमरजेंसी एक साथ हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा किन लोगों को हम बचा सकते हैं उनको सबसे पहले टेकअप करेंगे, फिर जो माइनर इंजरी के हैं उनको बाद में टेकअप करेंगे, और जो जिनकी डेथ हो गई उनको टेकअप सबसे लास्ट में करेंगे। ये सिस्टम कहलाता है ट्राइएज सिस्टम। और ट्राइएज सिस्टम में जहां पर मास कैजुअलिटी होती है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कोई बस एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई, तो एक साथ कई लोगों की 40, 50, 60, 100, 200 में भी एनी नंबर, तो ऐसी एरिया में जब हमारी टीम जाती है तो वहां पे क्या करती है, ट्राइएज। सो एवरीबडी अंडरस्टूड। हम इसके बाद इमरजेंसी के बाद हम वही लेंगे मास जहां पर इमरजेंसी हो एकदम से, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। आजकल जो आपने कोरोना में देखा,
ये बहुत सारे, हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, ज्यादा बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल फ्लडेड हो गए, बेड नहीं रह गए, आपने देखा है अभी सिचुएशन। तो इसमें ट्राइएज किया जाता था। ट्राइएज किया जाने का मतलब है, ट्राइएज सिस्टम ये चलाया गया कि जो ज्यादा, जो जिनको ऑक्सीजन लेवल 50-60 पे आ रही है और जो कोविड पॉजिटिव है उनको पहले लिया जाएगा, जो पॉजिटिव नहीं है उनका 90 पे है अभी तो उनको बाद में लिया जाएगा। और ट्राइएज करना ये एक सिस्टम है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर को कैसे बचा सकते हो ये किया जाता है। ट्राइएज माने छांटना। कैसे छाटेंगे? जो इमरजेंसी में पहले, जिनको इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत है उनको पहले, और फिर माइनर वाले को उसके बाद में, और जिनकी ऑलरेडी डेथ हो गई उनको सबसे बाद में। तो ये ट्राइएज कहलाता है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज ट्राइएज? Yes, हेलो? sir. हाँ, तो ट्राइएज का मतलब है हमारी इमरजेंसी में भी ये सिस्टम होना चाहिए। कोई कोई पर्सन ये कहे कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं पहले आया, मुझे इमरजेंसी में देखा जाए। अगर वहां पे कोई ब्लीडिंग करता हुआ, किसी का हाथ कट गया किसी मशीन में जा करके और ब्लीडिंग हो रही है बहुत, तो इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ गई? जिसकी ब्लीडिंग हो रही है अभी वो शॉक में जा सकता है। हेडेक वाला तो थोड़ी देर उसको हेडेक ही तो होगा। तो हम पहले दोनों पेशेंट में, अगर हेडेक वाला पहले पहुंचा है और उसके 2 मिनट बाद ब्लीडिंग वाला, हेमरेज वाला केस पहुंचा है, तो हम पहले किसको टेकअप करेंगे? हेमरेज वाले केस को। और इसी को छांटना ये हर इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी के अंदर भी होता है और इमरजेंसी के बाहर प्री हॉस्पिटल केयर एरिया में, जैसे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे बस एक्सीडेंट हुआ, बस खाई में गिरी, ये सब चीजें जहां पर आउटसाइड द हॉस्पिटल हुई वहां पर भी ट्राइएज करा जाता है। और इसके लिए एक टीम बनाई जाती है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह आप देखते हो, पुलिस के लोगों को, और जो हॉस्पिटल के प्री हॉस्पिटल केयर वाले लोग, पैरामेडिकल वर्कर, इन सबकी टीम बना करके ट्राइएज सिस्टम सिखाया जाता है। तो ये कहलाता है ट्राइएज एरिया। पेशेंट इमरजेंसी के बाहर भी ट्राइएज होता है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्राइएज होता है। तो ये ट्राइएज एरिया हो गए। देन सेपरेट ट्रीटमेंट एरिया, सेपरेट जो पेशेंट पहुंचे उनकी अगर अलग अलग प्रॉब्लम है, आर्थोपेडिक वाले को अलग देखते हैं, सर्जरी वाले केस को अलग, मेडिसिन वाले केस को अलग। तो ये इमरजेंसी में भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं एरिया। कार्डियक केयर एरिया, ट्रॉमा एरिया, होल्डिंग एरिया, स्पेशल केयर एरियाज। स्पेशल केयर एरिया जैसे आई की कोई प्रॉब्लम है, ऑप्थेल्मिक की, तो एरिया होना चाहिए। मैटर्निटी की कोई प्रॉब्लम, वो होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे एरियाज होने चाहिए हमारे उसमें। और जनरलाइज्ड, so I will finish up to here. Any problem up to this? What should be the scope and care to be provided? What should be the planning issue? And what should be the primary conditions? कैसे होने चाहिए? पेशेंट वर्कलोड के हिसाब से, फिजिशियन कवरेज के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से स्टाफिंग होनी चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से, साइज ऑफ द डिपार्टमेंट के हिसाब से, ये सब प्लानिंग इश्यूज हैं। सो क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइज, लोकेशन के हिसाब से। यू हैव टेकन पिक और नोटेड? एवरीबॉडी हैज नोटेड और टेकन द पिक? हेलो हेलो, Yes, sir. everybody has noted it? So any question about this? Any question about this? Everybody has understood what is triage? Yes, sir. ट्राइएज समझ में आ गया? हम जब आगे नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर में, डिजास्टर का मतलब वही सर होता आपकी है आवाज जो सही से नहीं आ आज, रही है सर। ये आपके सब खुले हुए हैं लगता कहीं पर, आप अपने ऑडियोस बंद करिए, वही से सोनम डिस्टर्बेंस माइक हो बंद रहा है करो सोनम। आपके। हाँ, अब देखिए डिस्टरबेंस बंद हो गया। आप लोग अपने माइक अगर खोले रहेंगे तो वो डिस्टरबेंस करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, डिजास्टर, अभी आपने एक कोरोना वाला डिजास्टर देखा, कुछ पैंडेमिक हो गया,
पेंडेमिक का मतलब समझते हैं? कोई भी डिजीज जो हो सकती है वो 4 फॉर्म में हो सकती है। एक फॉर्म ये है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक माने कहीं कहीं पर, जैसे आप खेत में बीज का छिड़काव करें, एक इस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, कहीं कहीं पर। ऐसे ही बीमारी का छिड़काव ऊपर वाला जब करता है, कहीं एक केस यहाँ पे मिल गया, एक इस मोहल्ले में मिल गया, दूसरा 4 मोहल्ले छोड़ करके मिल गया, ऐसे। तो इस तरह से जो केसेस होते हैं ये कहलाता है स्पोरेडिक, स्पोर्स के फॉर्म में। दूसरा होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि एक एरिया में, चाहे वो एक सिटी का हो, चाहे वो एक देश का हो, जैसे उस एरिया में इतने केसेस इस बीमारी के हमेशा मिलेंगे। जैसे कुछ एरिया, कानपुर के अगर आप रहने वाले हो, कानपुर में जो कंजेस्टेड एरिया है, चमनगंज, बेकनगंज, रेल बाजार, इधर के, तो ये सब जो कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़ी जगह में रहती है, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के केस ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे कोई बीमारी के केस एक जगह बहुत ज़्यादा मिलते हैं उस एरिया में, वो कहलाती है बीमारी एंडेमिक। और एक सडनली पूरे एरिया में, जैसे पूरे कानपुर में, पूरे लखनऊ में, ऐसे सबकी आंखें लाल हो गई। आपने देखा है केस भी कि कंजंक्टिवाइटिस हो गई, एक दूसरे को देखते ही कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। तो ऐसी जो कहलाती है वो एपिडेमिक है। और पैंडेमिक का मतलब पूरे देशों में, वर्ल्ड के कितने देश सफर कर गए कोरोना से, यू हैव सीन द पैंडेमिक। तो इस ये सब पैंडेमिक, तो आपने इसमें देखा कि इसमें एक एक हर घर में कोई ना कोई बीमार है, पूरा जिसको देखो। इसीलिए तो ये लॉकडाउन लगा है कि सब एक दूसरे से इन्फेक्शन ज्यादा फैलाता। तो इस तरह से ये पैंडेमिक में आजकल क्या देख रहे हैं आप, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसी इलनेस में भी किया जाता है, पैंडेमिक में डिजास्टर मैनेजमेंट उनमें भी किया जाता है। कोई जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो एक तो नहीं मरते, वहां 1000 2000 की कैजुअलिटी हो गई, तो डिजास्टर मैनेजमेंट। और ऐसे बस कोलाइड कर गई आपस में दोनों बस, तो उनके कई लोग मरेंगे, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, विच वी विल डील लेटर ऑन इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, all sir. the all the components are clear। कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्री हॉस्पिटल केयर होनी चाहिए, एम्बुलेंस में जाते हैं उसके भी ट्रेन होने चाहिए स्टाफ, उसमें भी इक्विपमेंट होने चाहिए। फिर राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचाना है, राइट टाइम पे पहुंचा देना है, तो जिससे उसका न लाइफ की लॉस्ट हो, न लिम का लॉस्ट हो। लाइफ और लिम का लॉस नहीं होना चाहिए, यानी उसको अच्छी टाइम पर मिल जाइए। तो सारे एम होते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के। ओके, सो यू पीपल ऑल विल राइट डाउन अबाउट द हॉस्पिटल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एवरीबडी विल राइट। एंड जो राइट करके आप अपने उसमें जो है व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल डालेंगे एवरीबडी, because this is very important topic. Next time we will discuss about the disaster management. Okay, so I will discuss more about the triage there. Okay, now Yes, CR sir. will give the attendance.